Okay, so today we'll see about today we'll see about hierarchical relationship and many to many relationship. Okay, today we'll see about hierarchical relationship and many to many relationship. Fine. So starting from hierarchical relationship. Okay, starting from hierarchical relationship. Okay, so hierarchical relationship is used to map, okay, used to map or used to make a relationship, okay, used to make a relationship of object with itself. Okay, hierarchical relationship is used to make a relationship of object with itself. Fine. So now this is also called as a self join. Okay, this is also called as a self join. This is also called as a self join. Hierarchical relationship is used to make a relationship of object with itself, and this is also called as a self join. अभी अगर सेल्फ जॉइन का कंसेप्ट अगर किसी को पता होगा तो कैन दे एक्सप्लेन, कोई बता सकता है व्हाट इज सेल्फ जॉइन? आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ सभी को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत डेटाबेस के कंसेप्ट. एनीवन? एनीवन? कोई तो बोलो. नहीं पता? ओके. ओके फाइन. ओके. नाउ सेल्फ जॉइन. सेल्फ मतलब व्हाट? सेल्फ मतलब व्हाट? इतना तो पता होगा. खुद का. और जॉइन मतलब टू कनेक्ट something. Okay, to connect something. So self join means connecting with ourself only. Okay, so connecting with ourself only. So hierarchical relationship is nothing but it is a relationship of object with itself. It is a relationship of object with itself. Okay, let's see. Okay, so suppose this is my object. Okay, suppose this is my object. Okay, और यही ऑब्जेक्ट जब खुद को कनेक्ट हो जाएगा, म्यूट कर दो, नो प्रॉब्लम. ओके, यही ऑब्जेक्ट जब खुद को कनेक्ट हो जाएगा. Okay, if this object get connected with itself, if this object get connected with itself, then this object, then this type of relationship is known as what? This type of relationship is known as what? A self relationship और hierarchical relationship. नॉर्मल डेटाबेस कंसेप्ट के अंदर, नॉर्मल डेटाबेस कंसेप्ट के अंदर वी कॉल्ड इट एज सेल्फ जॉइन, बट इन सेल्सफोर्स वी कॉल्ड इट एज hierarchical relationship. We called it as hierarchical relationship. Okay, एक एग्जांपल लेके समझते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं. Now consider. Okay, now consider I am having an employee table. Okay, now consider I am having one employee table. Okay, ये मेरा एक employee का table है. Fine. Now in this employee table I am having some rows, some columns are there. Okay, some
columns are there. Okay, so for example, first column will be like employee id. First column will be like employee id. First column will be like employee id. Okay, second column will be like name of the employee. Okay, name of the employee. Third column will be like salary. Okay, third column क्या होगा इसका? It can be a salary. Okay, fourth column क्या हो सकता है? It can be a designation. Okay, it can be a designation. Designation का कॉलम. और एक कॉलम, अभी ये कॉलम लिखने के बाद बताता हूँ क्या हो सकता है. ओके, ना फर्स्ट this. Okay, emp id. Okay, what is my first column is my emp id. What is my second column? Name. Okay, my third column can be my salary. Okay, and my fourth column can be my designation. Okay, and my fifth column can be my manager. Okay, can be my manager. इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं. ओके, इसको ले लेते हैं इसमें और इसको कर देते हैं बोल्ड. ओके, फाइन. मेरे पास 1 2 3 4 5 columns are there. Okay, I am having 5 columns like employee id, name, salary, designation, and manager. And this is my which table? This is my employee detail table. Okay, this is my employee detail table, or you can say employee detail object. Okay, object, or you can say table. Now, okay, now there can be many values. Okay, यहाँ पे कुछ values रह सकती है. We can say the employee number can be 1001. Okay, employee number can be 1001. Employee name can be some Ramesh. Employee name can be some Rakesh. Okay, salary can be some 10,000. Designation some marketing executive. Okay, marketing executive. Second can be my 1002. Okay, name can be some Salman. Okay, salary can be some 15,000. Okay, salary can be some 15,000. Okay, and can be some sales manager. Okay, sales manager. Okay, third one. Okay, okay, third one is like my SRK, salary some 2 lakhs. Okay, and this is my CEO. Okay, can be my CEO. Third one, so 4. Okay, some Swati can be some 25,000. Okay, can be my sales lead. Okay, sales lead. Okay, sales lead 1005. Some Abhijit. Okay, some Abhijit, salary some 15,000. Okay, and can be some sales executive. Okay, can be some sales executive. Okay, एक लास्ट बना लेते हैं. ओके, 1006.
सम रणदीप, ओके, सब रणदीप, सैलरी सम 15,000, एंड ये हो गया मेरा एम आर के एम आर के मैनेजर। ओके, इसका सैलरी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। नाउ अब ये क्या हो गया मेरे सब, दीज ऑल आर माई एम्प्लॉयज, दीज ऑल आर माई एम्प्लॉयज। अब अगर आप कोई भी कंपनी में जाओगे, इन एनी कंपनी, इन आईटी कंपनी बोलो, मार्केटिंग कंपनी बोलो, सेल्स कंपनी बोलो, प्रोडक्शन कंपनी बोलो, सर्विस कंपनी बोलो, इवन दो इफ यू आर गोइंग इन अ मॉल, even though if you are going in theater, even though you are going in hotel, everywhere, okay, everywhere there are employees, everywhere there are employees, okay. So in every organization or in every company or in any business, there are levels of employees, there are levels of employees. Some junior employees are there, some senior employees are there, some senior employees are there, ओके, एंड सीईओ आर देयर, ओके। एक लेवल होता है, ओके, देयर कैन बी अ लेवल, वहां पे क्या होता है, लेवल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर अ कल्चर ऑफ एन आईटी कंपनी, इफ वी कंसीडर एन अ कल्चर ऑफ आईटी कंपनी, सो देयर आर इंटर्न्स, देयर आर जूनियर डेवलपर्स, देयर आर सीनियर डेवलपर्स, देयर आर technical leads, and there are technical manager, there are delivery head, there is CTO, there is CEO, okay, इतने सारी चीजें रहती है। बट ये कौन है, all are whom, they are the employees of the company, they are the employees of the company, okay, they are the employees of the company। Now दिस इज राकेश, ओके, ये क्या है, ही इज अ राकेश, ये क्या है, राकेश है, एंड ही इज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एंड ही इज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। बट द मैनेजर ऑफ राकेश इज होम, संदीप, बट द मैनेजर ऑफ राकेश इज होम, संदीप। मैनेजर कौन है राकेश का, संदीप है। सो यू कैन मेंशन द आईडी ऑफ Randeep over here like 1006, okay, 1006, fine. Now this is Salman, okay, and this is Abhijit, okay, this is Abhijit, and the manager of Abhijit is whom, Salman, manager of Abhijit is whom, Salman। So इसको यहाँ पे कौन सा मैनेजर का आईडी आएगा, सलमान का। सो हियर कैन बी 1002, okay, 1002, fine, 1002। नाउ मार्केटिंग हो गया, सेल्स लीड है, ओके, सेल्स लीड कैन ऑल्सो अपडेट टू द सेल्स मैनेजर, सेल्स लीड कैन ऑल्सो अपडेट टू सेल्स मैनेजर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मैनेजर कौन है, ओके, इसका मैनेजर, इसका मैनेजर कौन होगा, 1002, ओके, इसका भी मैनेजर कौन हो गया, 1002 हो गया। एक मैनेजर के अंदर में मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं ना, ओके, फाइन। अभी दिस इज सीईओ, ओके, ये क्या है, सीईओ। अभी जो सीटीओ रहता, उस उसको कौन रिपोर्ट करेगा, वो सीईओ को रिपोर्ट करेगा, ओके, वो क्या करेगा, सीईओ को रिपोर्ट करेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज क्या है, एक सिंपल सी चीज है। अब मेरा मैनेजर भी मेरा एम्प्लॉय है, और मेरा जो नॉर्मल एम्प्लॉयज है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जो सेल्स मैनेजर है, जो सीईओ है, जो सेल्स लीड है, सारे के सारे क्या है, एम्प्लॉयज है, सारे के सारे क्या है, एम्प्लॉयज है, ओके, सारे के सारे क्या है, एम्प्लॉयज है। और उनके लिए अलग अलग टेबल रहेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल सी सीईओ के लिए अलग टेबल, मैनेजर्स के लिए अलग टेबल, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अलग टेबल, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए अलग टेबल। ऐसा होगा, होगा क्या, ऐसा होता है क्या,
नहीं होता है ना, क्योंकि मेरे को तो एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन लेना है, डिटेल लेना है, तो मेरा एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसके अंदर आई विल स्टोर। ओके, उसके अंदर आई विल स्टोर। फाइन। अभी मुझे एक चीज बताओ सिंपल सी, किरण एंड अश्विनी, बाकी लोग भी थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ाते हो और कोई ऑफिस में जाते हो, ओके, तो देर इज सम काइंड ऑफ थंब मशीन होती है आपका अटेंडेंस लेने के लिए। तो मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी का मैनेजर है तो वो कोई अलग थंब मशीन पे जाके थंब करता है क्या? नहीं करता। छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी कहाँ पे जाके थंब करता है? वहीं पे जाके करता है। ओके, सो एवरी वन विल बी वेयर, सब कहाँ होंगे? एवरी वन विल बी वेयर, दे विल बी इन यूर सिंगल टेबल। ओके, सेम टेबल में होंगे। ओके, फाइन। सो अब मुझे राकेश को अगर मैनेजर बताना है, राकेश को अगर मैनेजर बताना है, तो मेरा मैनेजर कौन है राकेश का? संदीप। ओके, सो मेरा एसोसिएशन कहाँ से कहाँ मैप हो रहा है? फ्रॉम राकेश टू रणदीप, 10001 टू 1006। ओके, अभी ये इसका कहाँ पे मैप हो रहा है? इसका मैप हो रहा है यहाँ पे। ओके, सेम थिंग मेरा अभिजीत का भी कहाँ मैप हो रहा है? यहाँ पे। ओके, सो ऐसे ही और भी मैप हो गए। सपोज ये जो मार्केटिंग मैनेजर है, ही इज रिपोर्टिंग टू सीईओ। ओके, सो इसके आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1003। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1003। सो मैं क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग अ रिलेशनशिप in a single table. We are making a relationship in a single table. So this is what we called as a hierarchical relationship. Okay, so this is what we called as a hierarchical relationship, मतलब सेम टेबल के साथ रिलेशनशिप। ओके, सेम टेबल के साथ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज यूर hierarchical relationship। क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, व्हेन यू मेंशन दैट दैट इज hierarchical relationship। सो आपको ये चीज समझाते आनी चाहिए विद एन एग्जांपल। ओके, विद एन एग्जांपल मैं भी बताता हूँ वो कैसे होती है। ठीक है, फाइन। सो ये कंसेप्ट समझा, hierarchical relationship। ओके, ओके प्रमोद। ओके फाइन, भूषण, फाल्गुनी। ओके फाइन, समझ गया नाउ। ओके, नाउ एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट? अभी सेल्सफोर्स ने क्या किया ना, इन सेल्सफोर्स, ओके, इन सेल्सफोर्स hierarchical relationship, hierarchical relationship is present for only user object। Okay, in Salesforce, hierarchical relationship is present only for, only for which object? Only for user object, only for what? यूजर ऑब्जेक्ट। उसके अलावा आपको कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट में hierarchical रिलेशनशिप नहीं मिलेगी other than user object। okay, other than user object। so this is important question of interview कि अगर आपने बोल दिए कि hierarchical relationship a relationship of an object with itself, so interviewer can counter question you that on which object you can make the hierarchical relationship। अगर उसने बोला if I can make hierarchical relationship on account object, any standard object, no, I cannot make hierarchical relationship on any standard object other than user object। okay, user object is also a standard object, standard object। okay, user object is also a standard object। I cannot make hierarchical relationship
in any standard object other than user object. Okay, and I cannot make a hierarchical relationship for any custom object. मैं कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं बना सकता, एंड ऑल्सो फॉर नॉट एनी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अदर देन यूजर ऑब्जेक्ट. ओके, अदर देन यूजर ऑब्जेक्ट. सो इतना चीज याद रखना, एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यूर हायरार्किकल रिलेशनशिप. ओके, अब आप बाकी ऑब्जेक्ट पे हायरार्किकल रिलेशनशिप क्यों नहीं बना सकते, बट यूजर ऑब्जेक्ट पे हायरार्किकल रिलेशनशिप क्यों बना सकते हैं? लेट्स सी. Okay, let's see. I will go to my Salesforce org. Okay, I will open my object. Okay, I will open my objects. I will click on this object. Okay, now what I want to make a hierarchical relationship on hiring manager object. I want to create a hierarchical relationship on hiring manager object. It is a custom object. Okay, it is a custom object. We'll see for standard object also. I will go to hiring manager. How we create any relationship? We create any relationship from child to parent by creating a new field, new custom field. Okay, in our object. So we'll go to new. We'll click on new, and now you can say there is relationship fields are there, but you cannot see any hierarchical relationship. आप देख पा रहे हो any hierarchical relationship? No, you cannot see any hierarchical relationship because it is not present for custom object. Okay, so it is not present for your any custom object. Okay, now what we'll do, we'll go to our स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. विल गो टू अवर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. तो एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं. गो टू सेटअप. हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है. हम लोग उसको अगर वी हैव टू we have to check the standard object. If we have to check the standard object, we'll go to customize. We'll go to customize. We'll go to customize. Customize में से this lead is also our standard object. Account is also our standard object. Contact is also our standard object. So I will go to account. I will go to fields. Okay, I will try to create this new field. I will try to create this new field, and you can see that we don't have lookup relationship. Okay, we don't have lookup, sorry, we don't have hierarchical relationship, even though we don't have master detail relationship. Even though we don't have master detail relationship. अब ये क्यों नहीं होती है हम लोग आगे देखने वाले हैं. Okay, no problem. Okay, now I will go to my another standard object, that is lead object. Okay, I will click on this. I will go to new. You can see, we can see only lookup relationship and external lookup relationship, even though we cannot see here master detail relationships also. Okay, master detail relationship. Okay, अब ये क्यों नहीं है वो भी हम देखेंगे. now कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं. ओके, विल सी न्यू. यहाँ पे भी नहीं है. ओके, नो हायरार्किकल रिलेशनशिप, इवन दो नो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ओनली लुकअप रिलेशनशिप इज प्रेजेंट. ओके, नाउ where I will go, now I will go to my user object. Okay, now I will go to my user object. Let's see where is user object. Okay, this is my user object. Okay, this is my user object. This is my user object. I will go to fields. Okay, I will go to field. I will go to custom user custom field. I will click on new. If you can see, you can see only a hierarchical relationship. Okay, you can see only a hierarchical relationship. That means what? You can create hierarchical relationship in only your user object. If I'm clicking on this, I will go to next. मुझे यहाँ पे डायरेक्ट फील्ड बनाने का ऑप्शन आ गया. मुझे यहाँ पे डायरेक्ट क्या बनाने का ऑप्शन आ गया? फील्ड बनाने का ऑप्शन आ गया. बट
क्यों ऐसा आया होगा? अगर इफ आई एम गोइंग एंड आई एम क्रिएटिंग अ न्यू रिलेशनशिप इन माय ऑब्जेक्ट, ओके, इन माय ऑब्जेक्ट, तो मुझे डायरेक्ट फील्ड बनाने का ऑप्शन नहीं आता, ओके। आई एम सिलेक्टिंग अ लुकअप रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल क्लिकिंग नेक्स्ट। आप लोगों को हमेशा क्या आता है? ऑलवेज दिस सेक्शन कम्स, रिलेट योर लुकअप रिलेशनशिप, ओके। रिलेट योर लुकअप रिलेशनशिप, उसके बाद आप जब नेक्स्ट करते हो, देन आपको वो फील्ड के लेबल, नेम, ऑल दैट थिंग्स यू नीड टू पुट। हाँ बोलो। ये यूजर ऑब्जेक्ट है, ओके, फाइन। So what I was supposed to tell you that we can create a hierarchical relationship in user object only. Okay, so I will go to user. Okay, I will go to custom fields. I will create new. आप लोगों को यहीं पे hierarchical relationship देखने को मिल रहा है, okay। Other than that कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता। If you clicking on this and you are trying to make a hierarchical relationship on user object, आपको डायरेक्ट कौन सा पेज आ रहा है? एंटर द लेबल एंड नेम फॉर द लुकअप, एंटर द लेबल एंड नेम फॉर द लुकअप। बट इफ आई एम गोइंग टू कैंडिडेट ऑब्जेक्ट, ओके, मैं कैंडिडेट ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ। इफ आई वांट टू मेक अ रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप, लुकअप मास्टर, आपको यहाँ पे नेक्स्ट जाते हो तो इट सेज यू टू सिलेक्ट द रिलेटेड पेरेंट ऑब्जेक्ट, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं करते हो, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। सो दिस इज हाउ यूअर hierarchical relationship is different from, this is how your hierarchical relationship is different from अदर रिलेशनशिप, ओके। अदर रिलेशनशिप से hierarchical रिलेशनशिप इस कैसे डिफरेंट है? सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट, ओके। बट अगर मैं अभी मेरे यूजर ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ओके, इफ आई एम गोइंग टू माय यूजर ऑब्जेक्ट, ओके, आई विल क्लिक गो फ्रॉम हियर, कंट्रोल एफ, यूजर ऑब्जेक्ट, ओके, फाइन। सो आई विल गो टू सेटअप, आई विल गो टू यूजर, ओके, मैं यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट ओपन करता हूँ। सो यू कैन से दिस मच यूजर्स आर प्रेजेंट, ओके, इतने यूजर्स अभी मेरे पास प्रेजेंट है, ओके। एक्टिव यूजर्स, ओके, एडमिन यूजर्स, okay, this is the admin user only and all users, so these are my users present, okay। ये chatter expert है, sales ये हम लोग हैं, okay। this is a system admin, ये user integration खुद ही बन जाता है एनालिटिकल क्लाउड इंटीग्रेशन का, और ये यूजर सिक्योरिटी समथिंग, ये जो है ये सारे सेल्सफोर्स के बाय डिफॉल्ट बनाए हुए हैं। एंड दिस इज माय सेल्सफोर्स क्लाउड ब्लीच जो हम लोगों ने बनाए थे, उसका प्रोफाइल है सिस्टम एडमिन। ये प्रोफाइल, रोल, यूजर्स क्या होते हैं वो भी हम लोग इन शॉर्ट देखने ही वाले हैं। बट दिस इज योर यूजर, ओके, दिस इज योर यूजर, ओके। नाउ अब मैं एक काम करता हूँ, ओके। आपको अगर इसका डेमो चाहिए है तो आई विल क्लिक अ न्यू यूजर, मैं एक न्यू यूजर क्रिएट करता हूँ। लेट्स से आई कैन क्रिएट अ यूजर ऑफ हुमैद, ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम खतीब, ओके। अलाइस मेरा खुद ब खुद लेके आता है, मुझे यहाँ पे एक मेल डालना पड़ेगा कि एच यू, नहीं ये नहीं डालता हूँ मैं, 25, ओके। सो मैंने ये मेल आईडी यहाँ पे डाल दिया है, ओके। एज सुन एज आप जब भी ये मेल आईडी यहाँ पे डालते हो, यूज़र नेम आपका खुद ब खुद वो यूज़र का क्रिएट हो जाता है और उसका एक निक नेम क्रिएट हो जाता है, ओके। यूज़र लाइसेंस आपको यहाँ से सिलेक्ट करने पड़ते हैं, तो आई विल गिव यूज़र लाइसेंस ऑफ सेल्स फोर्स, ओके। प्रोफाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आई विल गिव एज अ सिस्टम एडमिन। ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव का टैब रहता है, ओके। नाउ आई विल क्लिक ऑन सेव, ओके। मैंने क्या किया यहाँ पे सेव कर दिया है, ओके। सो नाउ इफ यू विल गो बैक to your user object, okay, if you will go back to your user object, you can see Khumed, okay, you can see Khumed and you can see Salesforce, ये दो users हो गए, okay। now what I will do, user fields पे I will go, I will click new,
Okay, I will click on hierarchical relationship. I will click manager. Okay, manager name. Okay, इन्होंने अपने आप ले लिया. चाइल्ड रिलेशनशिप नेम हमको यहाँ पे डालना है, सो वी कैन सेव एज यूजर मैनेजर. ओके, हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं. एंड वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. The custom field name you provided user manager on object can only contain okay, sorry. Okay, next. Okay, so now visible to all. Next, save. ओके, नाउ मेरा अभी क्या हुआ, यूजर मैनेजर के अंदर एक फील्ड बन गई है. उसका डेटा टाइप क्या है, हेरार्किकल रिलेशनशिप. ओके, हेरार्किकल रिलेशनशिप मेरा बन गया है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू माय यूजर ऑब्जेक्ट अगेन. मैं मेरे यूजर ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ. यूजर्स पे क्लिक किया. ओके, आई विल गो टू माय यूजर. अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा ये खुमैद खतीब को ओपन करता हूँ. ओके, ओपन दिस खुमैद खतीब. लेट्स सी, मैंने अभी कोई फील्ड यहाँ पे बनाई है. देखो ये फील्ड बनी, दिखी आपको ये फील्ड मैनेजर नेम. लेट्स सी, इसको अभी एडिट करते हैं. तो वहाँ पे अभी खुद का एक लुकअप आ जाएगा. ओके, वहाँ पे अभी एक लुकअप आ जाएगा. क्या आ जाएगा, यहाँ पे लुकअप आ जाएगा. अब जैसे ही मैं लुकअप पे क्लिक करूंगा, मुझे सारे यूजर्स दिखेंगे. यहाँ पे देखो सिस्टम एडमिन यूजर्स दिखते हैं. कौन से दिखते हैं, सिस्टम एडमिन, क्योंकि मेरा इसका जो ये है क्या बोलते हैं, लाइसेंस, इट इज सेल्सफोर्स लाइसेंस. तो यहाँ पे मुझे ये दो यूजर्स दिख गए हैं. सो आई विल क्लिक मैनेजर ऑफ खुमैद खतीब एज एंड आई विल सेव. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैनेजर नेम ऑफ फॉर खुमैद खतीब इज व्हाट, Cloud Blitz Salesforce. Okay, what is it? Is a Cloud Blitz Salesforce. So this is how your lookup relationship works. This is how your lookup relationship works. Means how go to user object. Okay, go to user object from setup. Okay, from setup. After that, what you need to do, create a user. Okay, create a user with as per यूर नीड. ओके, आपके हिसाब से आप यूज़र बनाओ. ओके, जैसे मैंने बनाया था खुमैद खतीब, यू कैन मेक विथ यूर नेम, और कोई भी और नेम का आप बना सकते हो एज पर यूर नीड. ओके, नाउ गो टू यूजर ऑब्जेक्ट. गो टू वेयर कस्टम फील्ड सेक्शन. कहाँ जाओगे, कस्टम फील्ड सेक्शन में. फ्रॉम देयर क्लिक ऑन न्यू. ओके, क्लिक ऑन न्यू. select data type or field type as what, hierarchical relationship. Okay, hierarchical relationship. उसके बाद fill the details like label, name, child, relationship name. Okay, fill the detail like label, name, child, relationship name, and save. Okay, and save.
Now open any of the user. Okay, you can see the field with what lookup dialog with same user object only. Okay, user object only. समझा मैंने क्या बोला? एनी कंफ्यूजन? ओके. हम्म. हम्म. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो दूसरे प्रोफाइल्स भी ले सकता है. ओके, ऐसे ज़रूरी नहीं है, वो दूसरे प्रोफाइल्स की भी यूजर्स ले सकता है. ये मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कंसेप्ट ये कैसे होता है ना, ये धीरे धीरे बताऊंगा. ये यूजर मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है. ओके, इट इज नॉट ओनली फॉर योर रिलेशनशिप. ये यूजर, देखो मैं बताता हूँ. दिस रोल, दिस प्रोफाइल एंड दिस यूजर, ये बहुत बड़े कंसेप्ट है सेल्स फोर्स में. ओके, दे आर वेरी बिग कंसेप्ट इन सेल्स फोर्स. और ये सारी चीजें कब आती है ना, इट कम्स अंडर योर सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ सेल्सफोर्स. ओके, सो जब मैं चालू करूंगा ना आप सिक्योरिटी फीचर्स, तब आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें वो और भी अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगी. ओके, नाउ टिल नाउ जस्ट ट्रीट योर यूजर एज अ सेल्सफोर्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. ओके, ओनली हम लोग यहाँ पे इसको बना लिए. ओके, फाइन. सो नाउ दिस वाज माय hierarchical relationship. This was my hierarchical relationship. तो आप भी क्या करोगे, एक टास्क दे देता हूं मैं आपको. ओके, मैप. मैप का मतलब मेक भी हो सकता है, तो वो मुझे कैसा टेक्निकल वर्ड्स की आदत है, तो वो मैं मैप वगैरह बोल देता हूँ. मैप hierarchical relationship in your Salesforce org for user object, for user object. ओके, सो आप इसको बना लेना. ओके, सो आप इसको बना लेना. फाइन. ये सब. हाँ बोलो. यूजर ऑब्जेक्ट कितने भी नहीं बना सकते. यूजर ऑब्जेक्ट इज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, वो सेल्सफोर्स का खुद का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वो सेल्सफोर्स का खुद का ही ऑब्जेक्ट है. और आप कितने भी यूजर्स नहीं बना सकते हो. ओके, आप कितने भी यूजर्स नहीं बना सकते हो, क्योंकि सेल्सफोर्स का जो रेवेन्यू है ना, एक्चुअल इनकम ऑफ सेल्सफोर्स, इट इज डिपेंड अपॉन द यूजर. इट इज डिपेंड अपॉन द यूजर. सेल्सफोर्स जो लाइसेंसेस प्रोवाइड करता है, सेल्सफोर्स प्रोवाइड लाइसेंसेस फॉर योर यूजर्स. सेल्सफोर्स प्रोवाइड योर लाइसेंसेस फॉर योर यूजर, नॉट फॉर योर ऑर्ग. ओके, तो हम लोग कितने भी यूजर्स नहीं बना सकते. हम लोग कितने भी यूजर्स नहीं बना सकते. लेट्स सी, अगर मैं आपको बताऊं तो इफ आई कैन गो टू where I need to go. Let me open one. See, देखो ये जो कंपनी इंफॉर्मेशन है ना, इन द कंपनी इंफॉर्मेशन, बिकॉज दिस इज अवर फ्री डेवलपर ऑर्ग, तो आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है कि आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो. ओके, हाउ मच यूजर्स यू कैन क्रिएट. सो सी, वी हैव ओनली ये, दिस इज द यूजर लाइसेंसेस. ओके, दिस इज द यूजर लाइसेंसेस. वी हैव, नेम है इसका सेल्स फोर्स एक्टिव स्टेटस 2. टोटल लाइसेंसेस हाउ मेनी आर देयर, 2 licenses आर देयर. ओके, यूज्ड लाइसेंसेस हाउ मच, 2. ओके, 2 क्यों हुए हैं, बिकॉज एक जो लाइसेंस था
while creating our org, वो हमारा जो एडमिन बना है उसको गया है. Now I have created one more यूजर विथ अ लाइसेंस सेल्सफोर्स, तो वो भी यूज हो गया है, दैट इज वाई रिमेनिंग लाइसेंस इज जीरो. अब मैं नया यूजर विथ सेल्सफोर्स लाइसेंस आई कैन नॉट क्रिएट. अब मैं द यूजर विथ सेल्सफोर्स लाइसेंस आई कैन नॉट क्रिएट. ओके. एक्सटर्नल ऐप लॉगिन, देयर आर टोटल 20 लाइसेंसेस. सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, देयर आर 3 लाइसेंसेस. ओके. अब ये सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट, इसको ही कैन डू डेवलपमेंट. ओके, ही कैन डू द डेवलपमेंट. ओके, ये भी हम लोग आगे देखेंगे. और यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, इतनी सारी हम लोगों को इसकी इतने सारी कोई यूज पड़ता भी नहीं है. ठीक है, इतनी सारी चीज़ों का पड़ता नहीं है. पार्टनर कम्युनिटी 5 लाइसेंसेस है, तो इसका पढ़ सकता है काम. ओके. और ये दीज आर द परमिशन सेट्स वगैरह सारी चीज़ें. फीचर्स लाइसेंसेस, मार्केटिंग यूज़र 2 है, अपेक्स मोबाइल यूज़र 3, नॉलेज यूज़र 2. सो दीज आर द फीचर्स लाइसेंसेस. ओके, ये सारे क्या है, लाइसेंसेस है. और इतने हमको लाइसेंसेस है, वी कैन यूज दिस मच. ओके, वी कैन यूज दिस मच. सेल्स फोर्स में आपको स्टोरेज का भी प्रॉब्लम होता है. ओके, सेल्स फोर्स में आपको क्या होता है, स्टोरेज का भी प्रॉब्लम होता है. सेल्स फोर्स हमको एक लिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है. ओके, दिस इज अवर व्हाट, फ्री डेवलपर ऑर्ग. सो उसके लिए स्टोरेज देखो कहाँ करना है, यहाँ पे जाके स्टोरेज लिखना है. So you can see the storage uses. If you are clicking on this to data storage, आपके पास कितना है, 5 MB ओनली. आप ये पूरे ऑर्ग में सिर्फ 5 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट. ओके. हम लोगों ने अभी कितना यूज कर लिया है, 387 KB वी हैव यूज. ओके, अभी तक 1 MB भी हम लोगों ने यूज नहीं किया है. वी हैव यूज अराउंड 387 MB मीन्स 8%. ओके. बिग ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ये बिग ऑब्जेक्ट डिफरेंट कंसेप्ट. फाइल स्टोरेज, जो हम लोग फाइल, जैसे हम लोगों ने अभी बीच में ये डाले हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फाइल्स डाले हैं, तो दिस इज द फाइल स्टोरेज. सो इतना है ये. ओके, 20 MB का फाइल स्टोरेज वी कैन हैव, नॉट मोर देन दैट, फॉर दिस फ्री डेवलपर ऑर्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड दिस इज वी हैव यूज 34 KB. ओके. नाउ करंट डेटा यूजेस, अभी कौन से ऑब्जेक्ट ने कितना डेटा यूज किया है ये यहाँ पे है. कैंडिडेट ऑब्जेक्ट, फोटोज, record count. Okay, this is the record count. So in opportunity we have 31 record count, in cases we have 26. Okay, hiring manager we have 8 records, position we have 6. और यहाँ पे साथ साथ में उसका कितना स्टोरेज इसने लिया है एंड द परसेंटेज ऑफ द स्टोरेज. okay, this is how you can see the storage uses also. Okay, this is how you can see the storage uses also in the same way. Apex classes. Okay, Apex classes, you are currently using 27 character of Apex, including this your organization allowed only कितना है, ये काउंट कितना है, 60 lakhs है क्या, 6 lakhs है, 60 lakhs कैरेक्टर ओनली आई कैन यूज इन माई अपेक्स. ओके, 60 lakhs कैरेक्टर ही मैं यूज कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं यूज करूंगा तो ये मेरा स्टोरेज फुल हो जाएगा. ओके. सो अभी तक वी आर यूजिंग 27 कैरेक्टर ओनली. हमने अभी कितना यूज किया है, ओनली 27 कैरेक्टर. ओके. सो बिकॉज इट इज अ व्हाट, अ फ्री डेवलपर ऑर्ग. ये क्या है, फ्री डेवलपर ऑर्ग होता है, इसलिए इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं. फाइन, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, नो इश्यूज. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर व्हाट, hierarchical relationship. This is the concept of your what, hierarchical relationship. Okay. now मुझे एक बात बताओ, लुकअप एंड मास्टर डिटेल कौन सा मैपिंग था, 1 to many एंड 1 to many. और ये हेरार्किकल रिलेशनशिप कितना, कौन सा मैपिंग है, व्हाट विल बी द मैपिंग, 1 to 1, 1 to many, 1 to 1. और कोई, हाँ हो सकता है ना, 1 to many, वही मैं पूछ रहा था कि इट कैन बी 1 to many. बिकॉज वाई,
अब एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग काम कर सकते हैं? मेनी, है ना? सो ये क्या होता है? वन टू मेनी का रिलेशनशिप होता है हमारा। हायरार्किकल भी क्या होता है? इट इज ऑल्सो वन टू मेनी। फाइन। नाउ हमारा अभी जो सेकंड है ये है हमारा, नाउ इट इज अवर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अभी हम लोगों ने क्या देखे? अभी सारी चीजें कहाँ तक देखे? वी हैव सीन one to many relationship, okay, we have seen one to many relationship only, बट अब ऐसा भी कभी कोई बिजनेस केस आ सकता है जिसके अंदर वी कैन हैव मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। आ सकता है कि नहीं आ सकता? ओके, सो अभी देखते हैं व्हाट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, नाउ अभी पहला वी upon mapping, okay, upon mapping the upon mapping the association between the two objects, okay, एक मिनट। हाँ, okay, so we'll go for upon mapping the association between the two objects, okay, if both the object, okay, if both the दृष्टि मैं कल भेजता ना सारी चीजें, मैं बाहर हूँ एक्चुअली। कल भेजता हूँ दृष्टि सारी चीजें। हाँ हाँ ठीक है, वो गुलाम का ना L1.5 फीडबैक भेज देना तुम, ठीक है, क्योंकि रामी लीड पर है। एंड मैंने तुम्हें और भी पिंग करी हूँ, वो कैंडिडेट के स्टेटस और लीड है कि डेवलपर, वो साइड में लिख के भेज देना। चलेगा चलेगा, कल ओके। मॉर्निंग तक भेज देना प्लीज, मुझे डेटा देना है। हाँ हाँ, ओके, फाइन फाइन। हाँ if both the object are if both the object, सॉरी हाँ, देखो क्या होता है ना, अपॉन मैपिंग द एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, एसोसिएशन मैप करते हैं। मतलब क्या करते हैं, वी मेक द रिलेशनशिप, ओके, वी मेक द रिलेशनशिप, वी मेक द रिलेशनशिप इफ, अगर इफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर एसोसिएटेड विथ one many from both side, okay, one to many from both side, okay, one to many from both side, समझने की कोशिश करो। if both the object are associated with one to many from both side, then it is called as many to many association, then it is called as many to many association, okay। इसका एक एग्जांपल लेता हूं,
उसके बाद आपको उसको समझाता हूँ, ठीक है। ओके, इसको हम लोग लिखना बाद में कंप्लीट करते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, इसको हम लोग न्यू कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अभी एग्जांपल लेते हैं। आई एम हैविंग दिस ऑब्जेक्ट, दिस वन टेबल, ओके, मेरे पास ये एक टेबल है, फाइन, एंड दिस इज माय सेकंड टेबल, ओके। हम लोग एसोसिएशन काय में मैप करते हैं, वी ऑलवेज मैप एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ओके। अभी तक हम लोगों ने देखा है एसोसिएशन वी कैन मैप इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड इट वाज फॉर वन टू मेनी। नाउ वी आर सीइंग द एसोसिएशन इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जो मेनी टू मेनी है, ओके। अब मेनी टू मेनी कैसे हो सकता है, लेट्स सी। फर्स्ट एक हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट कंसीडर दिस इज एन ऑथर ऑब्जेक्ट, लेट कंसीडर दिस इज एन ऑथर ऑब्जेक्ट, ओके। ऑथर मीन्स हम लोग जो बुक के ऑथर्स होते हैं ना, उनको कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज द ऑथर ऑब्जेक्ट, ओके, एंड कंसीडर दिस इज द बुक ऑब्जेक्ट, कंसीडर दिस इज द बुक ऑब्जेक्ट, ओके, कंसीडर दिस इज द बुक ऑब्जेक्ट। नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ टेबल्स बना लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फर्स्ट टेबल, okay, you can say the author id. Second table you can say the name, okay, second table you can say the name, okay, and this is my third, okay, and this is my third, fine। now अभी इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, लेट्स सी, इसको कंप्लीट कर लिए, okay, fine। now what I will do, I will write something over here, so this will be my id, okay, this will be my author name, okay, this will be my name of my author, okay, and this will be my location of, okay, of author ka location, okay, author ka, we can say it is the location of the author। now we will consider this book object, हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके, फाइन। अभी इसके अंदर कुछ कॉलम्स बना लेते हैं, लेट्स सी, दिस इज माय बुक नंबर, ओके, बुक नंबर, दिस इज माय बुक नंबर, फाइन। और एक मैं बना लेता हूँ बुक टाइटल, और यहाँ पे आई विल प्राइस, ओके, ये एक मेरा प्राइस का बना लेते हैं, ओके, इसका प्राइस का बना लेते हैं, ओके, फाइन। नाउ दिस इज बुक, अब बुक का नंबर क्या हो सकता है, ओके, बुक नंबर बोल सकते हैं, या फिर ISBN नंबर होता है बुक का मोस्टली, बुक का मोस्टली नंबर कौन सा होता है, ISBN नंबर होता है, ओके। अगर कभी बुक को उठा के पढ़ोगे तो वहां पे दिखेगा कि उसके अंदर ISBN नंबर होता है। उसके बाद में बुक का क्या होता है, बुक, बुक टाइटल इज ऑल्सो देयर, और फिर हमारे साथ साथ में क्या होता है, बुक का प्राइस होता है, ओके, बुक का क्या होता है, देर इज अ प्राइस फॉर अ बुक, बुक का क्या हो गया, प्राइस हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, फटाफट आई विल राइट ईयर, ओके, 1001, ओके, नेम सम, JONH जॉन। अब इन्होंने कौन, इनका लोकेशन है कंसिडर USA, ओके, 1002, ये ऑथर का नाम है सम ओरियली की, कोई ओरियली करके हमारे पास एक ऑथर होते हैं, ओके, ये सम UK में बैठे हुए हैं, 10003, ये हमारा, ये सब मेरे को इंजीनियरिंग के बुक के नाम याद है, ओके। R पियर्समैन करके कोई तो भी एक बुक होती थी, हम लोग वो भी यूज कर सकते थे, सम इट इज ऑफ USA, ओके, 1004, Y कानेटकर, ओके, इस Y कानेटकर, he is from India, okay। now 10005, लेट्स सी, हम लोग स्मिथ का बुक आता था एक, ओके, इज फ्रॉम, लेट्स सी, ऑस्ट्रेलिया, 1006, फटाक से हम लोगों ने लिख लिया ये सारी चीज़ें, बाला गुरु स्वामी, ओके,
Swami. Okay, ये भी we can say he is from IND. He is also from India. फाइन, हम लोगों ने ये बना लिए. ओके, सॉरी इसका ये सेम हो गया कलर, नो इश्यूज. विल गो ओवर हियर, आई विल राइट द नेम ऑफ सम बुक्स. ओके, इसको कलर चेंज कर लेते हैं. अब बुक का कुछ आईडी दे दे, 2001 से इसको स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, बुक का टाइटल दे देते हैं सी प्रोग्रामिंग. ओके. ओके, सी प्रोग्रामिंग, इसका कुछ प्राइस दे देते हैं. सम ऑफ डॉलर का साइन मेरे लैपटॉप पे नहीं, रुपीज़ का नहीं है, तो आई विल से $150. ओके, कुछ 2002. जावा का बुक. ओके, वी कैन राइट $375, 20003. We can write head first Java. Okay, and we can write some $230, 2004. Okay, some software engineering book. Okay, and here can be $340. Okay, 2005, बस एक और लिखते हैं 2006, देन विल स्टॉप हियर. और मैं आपको बताऊंगा क्या मैपिंग कैसा होता है. ओके, इसका होता है सी हैश का बुक हो सकता है. ओके, .NET. ओके, एंड इसका सम वी कैन राइट $234, and my last one is 2006. Okay, now सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और इसका कुछ सिंपली वी कैन गो एंड राइट $450. ओके, ना अभी मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है. देयर इज एन ऑथर ऑब्जेक्ट एंड देयर इज एन अ बुक ऑब्जेक्ट. ओके, कुछ मेरे पास ऑथर्स है और कुछ मेरे पास बुक्स है. अब एक मुझे छोटी सी सिंपल सी चीज बताओ. सिंपल सी चीज, आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइज ओनली. वन ऑथर कैन राइट हाउ मेनी बुक्स? एक ऑथर कितनी बुक्स लिख सकता है? वन ऑथर कैन राइट मेनी बुक्स. ओके, फाइन. नाउ अभी मुझे, मैं वाइस वर्सा पूछता हूँ. फॉर राइटिंग अ बुक, फॉर राइटिंग अ बुक और फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन राइटिंग अ बुक, हाउ मेनी ऑथर्स कैन कंट्रीब्यूट? मेनी. कितने ऑथर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मेनी. यानी एक ऑथर मल्टीपल बुक्स लिख सकता है. एक ऑथर मल्टीपल बुक्स लिख सकता है, और एक बुक कैन बी रिटन बाय मल्टीपल ऑथर्स. एक बुक कैन बी रिटन बाय मल्टीपल मल्टीपल ऑथर्स. अगर हम लोग यहाँ पे कोशिश करें, प्रमोद, यू आर गेटिंग ना? हाँ. ओके, नाउ लेट्स सी. ओके, इसका एक मैपिंग लेते हैं. सपोज जॉन हैज रिटन दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक. ओके, जॉन ने क्या किया? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बुक लिखा है. यशवंत कानेटकर हैज रिटन सी प्रोग्रामिंग बुक. ओके, यशवंत कानेटकर ने सी प्रोग्रामिंग का बुक लिखा हुआ है. ई, ये जो उठा के हम लोग करते हैं, ये इन्होंने ये वाला बुक लिखा हुआ है. ओके, इन्होंने ये वाला बुक लिखा हुआ है. फाइन. लेकिन अब मुझे बताओ, सी प्रोग्रामिंग का बुक लिखने के लिए सिर्फ स्मिथ, सिर्फ स्मिथ, देखो एक मिनट, थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ. ठीक है, मतलब आज समझ में आए, यहाँ से मैं कंट्रीब्यूशन बनाता हूँ. ओके, लेट्स सी. बालागुरु स्वामी इन इंडिया हैज रिटन दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बुक. ओके, बालागुरु स्वामी हैज रिटन दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बुक. इन्होंने ये लिखा हुआ है. ओके, उसके बाद में स्मिथ हैज रिटन दिस सी प्रोग्रामिंग बुक.
Okay, Smith has written this C programming book. John has written this software engineering book. Okay, John has written this software engineering book, and O. Persman has written this Java book. Okay, O. Persman has written this Java book. लेकिन अब मुझे बताओ, while writing software testing book, Smith John has also contributed with Balaguru Swami. Okay, John has also contributed with some Balaguru Swami. Okay, John has also contributed with Balaguru Swami. Means what? John has also written this book. John is also the author of this book. Okay, now John is also the author of this book. Now, E. Persman has also contributed to write this software engineering book. Okay, this software engineering book. O really has written this CH.NET book. Okay, but यशवंत कानेटकर has also contributed in writing this C programming book. मतलब क्या हुआ? अभी मुझे बताओ, इसमें से आपको समझ में क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या हुआ है? इट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. ओके, यहाँ पे क्या है? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है. ओके, सो देयर इज अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इन दिस टू ऑब्जेक्ट. ओके, अब कभी कभी हमारे पास सिनेरियो आ सकता है कि वी हैव टू मैप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, बट इन सेल्स फोर्स हमारे पास ऐसा कोई टाइप का रिलेशनशिप है क्या? वी हैव सीन ना, हमारे पास ऐसा कोई टाइप का रिलेशनशिप नहीं है. वी हैव लुकअप रिलेशनशिप एंड वी हैव master detail relationship, we have hierarchical relationship, but hierarchical relationship is for user object, and we have master detail and lookup. Okay, उसके अलावा हमारे पास और कोई रिलेशनशिप नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लुकअप. वो इट इज इन दिस, इट इज नॉट इन दिस रेस, वो थोड़ा अलग है. ओके, इट इज रिलेटेड टू सम इंटीग्रेशन. सो हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है. सो इन दिस केस अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सो इन दिस केस मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दिस केस मुझे क्या करना पड़ेगा? एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. इन दिस केस मुझे क्या करना पड़ेगा? एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आई नीड टू स्टोर, जिसके अंदर आई नीड टू स्टोर ऑथर आईडी ऑल्सो एंड बुक आईडी ऑल्सो, जिसके अंदर आई नीड टू स्टोर ऑथर आईडी ऑल्सो एंड बुक आईडी ऑल्सो. बट that object will be one to many relationship to this two object. That object will be one to many relationship with this two object. Like I am creating a object. Okay, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे अभी. Okay, let's create this object. Okay, अभी ऑब्जेक्ट का नाम what I will do, मैं ये ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे रख देता हूँ. Okay, author. Okay, author, book, author, ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग? ऑथर, बुक, ऑब्जेक्ट. ओके, अब यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ? 3 कॉलम बना लेता हूँ. लेट्स सी, ये एक कॉलम हो गया. ओके, ये एक कॉलम हो गया. उसके बाद में दिस विल बी माय सेकंड कॉलम. ओके, और दिस विल बी माय थर्ड कॉलम. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रिटन द कॉलम हियर. Fine. Now what I will do, I will write some headings of the column. Okay, so for writing heading of the column, I can write here as author id. Okay, book id, and number of pages of book. Okay, number of pages of book, number of pages of book. ठीक है. अब अब क्या होगा? लेट्स सी. नाउ दिस ऑब्जेक्ट, जो ये है मेरा ऑथर ऑब्जेक्ट है ना, जो दिस इज माय बुक ऑथर ऑब्जेक्ट,
it is called as a junction object. Okay, what it is called as? It is called as a junction object. It is called as a junction object. Okay, it is called as what? It is called as a junction object. It is called as what? A junction object. Okay, junction object बोलते हैं. But remember, जब भी इंटरव्यू होगा फॉर दिस, ओके, सो यू, so interviewer will ask you what is the junction object in Salesforce. Okay, what is the junction object in Salesforce? So you should answer, okay, you should answer, it is a object, it is a object which is related to many relationship, which is related to what? Many to many relationship. Or if we want to create a many to many relationship, then we use a third object, and that object is known as your junction object. Okay, now abhi kaise, let's see. Okay, now my first author, okay, 1001, okay, my first author can write, has written a book like 204. Okay, 2004. ओके, मेरे एक ऑथर ने क्या लिखा है? 200. ओके, वो बुक लिखा है, और वो बुक के पेजेस सम लाइक 700. ओके, नाउ my 101 author, my this 101 id author has also contributed to write the book 2006. So it can be 1001. Okay, it can be 1001 and 2006. गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, इट इज 800. Okay, because it is a different object which is storing the author id and which is also storing the book id, means one author can have multiple books written, multiple books, and multiple books can have one author. Okay, one author can have multiple books, and one book can, and multiple book can have one author. So इसको हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते. सो वी नीड अ जंक्शन ऑब्जेक्ट, वी नीड अ जंक्शन ऑब्जेक्ट जहां हम ये दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे विथ द हेल्प ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट, विथ द हेल्प ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट. ओके, सिंपल, इट इज अ टाइप ऑफ ब्रिज. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ ब्रिज जो कनेक्ट करता है दो सिटीज को बोलो, या दो रोड्स को बोलो, या किसी को भी बोलो. ओके, इट इज वर्किंग एज अ ब्रिज. वो एक ब्रिज का काम कर रहा है. ओके, नाउ सो फॉर एग्जांपल अगेन वी कैन राइट लाइक दिस 1003 हैज रिटन विच बुक? 1003 हैज रिटन 2000 book. Okay, it is some 600. Now 1003 has also written what book? Okay, ये देखो, ये white वाला 2002 book, 2002 book, and it is some your 700 pages. Okay, so this is how your third object will be. Okay, so this is how your third object will be. So this many to many relationship object, matlab this author object and book object will never get connected with each other directly. Okay, this author object and book object will never get connected with each other directly. You need a third object to connect this, you need a third object to connect this. Okay, now consider, so considering this is the child. Okay, considering this is my child object and these are my parent object. Consider these are my child object, these are my child object. Okay, this is my what? Consider this is my child object, and these are my what? These are my parent object. Okay, these are my parent object. Now directly we cannot connect one parent with another parent, we cannot connect two parent with each other, we cannot connect two parent with each other, we cannot connect two parent with each other. Book is also a parent and author is also a
parent. So we cannot connect two parent with each other. Getting my point? We cannot connect two parent with each other. That's why we have to make a child object which will connect this two parent. Okay, this will connect this two parent, and the object which is connecting this two parent object is nothing but a junction object, and this whole schema it is called as your, and this whole schema it is called as your many to many relationship. now आप बोल रहे होंगे सर how it will get connected. okay, so मैंने आपको कल भी बताया था, the day before yesterday I have also tell you how we connect the relationship in between parent and child. We connect a relationship in between parent to child from child to parent. हम क्या करते हैं कभी भी, we connect from child to parent. So for this, okay, let's see. ये काम नहीं करते हैं ऐसा. Let no issues. Okay, so what we'll do, so ये जंक्शन ऑब्जेक्ट कैसे कनेक्ट होगा. so ये जंक्शन ऑब्जेक्ट कैसे कनेक्ट होगा, इट विल बी कनेक्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट को कनेक्ट होगा, एंड इट विल कनेक्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट. ओके, इट विल कनेक्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट. फाइन, ये कैसे कनेक्ट होगा, इट विल कनेक्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट. मतलब ये ऑब्जेक्ट जो होगा, दिस ऑब्जेक्ट विल गेट कनेक्टेड विथ this object, and this object will also get connected with this object, but with the help of master detail relationship. but with the help of master detail relationship. मतलब ये child object में I will make two master detail relationship. in this child object I will make two master detail relationship. in this child object I will make two master detail relationship. one will make association with author object, and one will make association with your book object. okay, now अब कल मैंने आपको मास्टर डिटेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था. मुझे रिपीट करो, वो कौन सा पॉइंट था. ठीक है, ये तो पॉइंट था, बट एट द लास्ट मैंने एक और पॉइंट बताया था. इन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, whenever we are deleting whenever we are deleting the parent, child automatically get deleted. okay, child automatically get deleted. now see, this is connected with my ऑथर ऑब्जेक्ट. अगर मैं ये टेबल में से ये ऑथर ऑब्जेक्ट यहां से निकाल दूंगा, ओके, लेट्स कंसीडर आई एम रिमूविंग दिस ऑथर ऑब्जेक्ट. लेट कंसीडर आई एम रिमूविंग दिस ऑथर फ्रॉम दिस ऑथर ऑब्जेक्ट. सो यहां से भी वो क्या करेगा, इट विल गेट डिलीट. ओके, यहां से भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स में भी से भी वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. क्योंकि अगर ऑथर ही नहीं रहेगा तो बुक कहाँ से रहेगी. ऑथर ही नहीं रहेगा तो बुक कहाँ से रहेगी. नाउ इन सेम केस, if I am deleting this 20 book from my book table, from my which table, book table. so this is also in master detail. so as soon as I am remove this, ये book का आईडी, मतलब ये बुक का बुक ही पूरा डिलीट हो जाएगा. तो जैसे ही यहाँ से बुक डिलीट होगा, सो यू कैन सी दैट यहाँ से ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा. ओके, 204 वाला रिकॉर्ड भी क्या हो जाएगा, अपने आप इट विल गेट डिलीटेड. बिकॉज अगर बुक ही नहीं है तो वो ऑथर रहेगा क्या. जहां बुक नहीं वहां ऑथर नहीं, और जहां ऑथर नहीं वहां बुक नहीं. सिंपल, सिंपल कंसेप्ट कि कंफ्यूज. हाँ या ना, समझा. गुड. प्रमोद. ओके, सो व्हाट विल डू ना, हम लोग कल इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे.
So till then what I will do, I will create this author object, book object and this author. कल मैं ये दो ऑब्जेक्ट मैं खुद बना लूंगा. विल क्रिएट दिस थर्ड ऑब्जेक्ट. ओके, हम लोग ये थर्ड ऑब्जेक्ट आपके सामने बनाएंगे. फाइन. तो इन केस व्हाट आई विल डू, मैं काम करूंगा, मैं ये आपको क्या करता हूँ आज, ये भी इसका भी पूरा भेज देता हूँ. ओके, आई विल सेंड दिस डायग्राम ऑल्सो. इफ यू कैन मेक, if you can try, you can try, but remember for junction object always there is a master detail relationship. Okay, always there will be a master detail relationship. Okay, always there will be a master detail relationship. Fine. So let's save this. सो अभी तो मैं मास्टर डिटेल के बारे में, अभी मेनी टू मेनी के बारे में कुछ अभी लिखता नहीं हूँ. ओके, हम इसको लिखेंगे कल ही. बट यू कैन create it in your org, you can create it in your org. मैं आपको वो भेज देता हूँ. So we'll stop the